Hello, my dear students. Hope keeping good health and enjoying your studies. Well, we are doing our chapter number 15, or you can say we are come to the concluding part. Sorry, bachcho, I forgot to change the date. Make it 12. Make it 12. Today is 12. Okay. So far, we have tried to study charge, how charges get created, what is electric discharge, how lightning takes place, how we can detect the charge, what type of charge will be created on which type of material and all that. सब मैंने आपको लास्ट लेसन में ये भी बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दोस थिंग्स. यस, वी विल कंसंट्रेट ऑन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक बच्चों थोड़ा सा समझने वाला टिकलिश टॉपिक है. जैसे लाइटनिंग था वैसे ही अर्थक्वेक. हाउ अर्थक्वेक ऑकर्स. एंड सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, earthquake is such a destructive natural phenomena which cannot be predicted and which is not predictable. We cannot tell in advance. Other natural phenomena like cyclones, storms, heavy rains, heavy to heavy rains, cloud bursts, this and that, सब हम such type of innovative, you can say, things have come, instruments are there, meteorological department, they are analyzing the data and all that, and they are telling you in advance. Storm is coming, cyclone is coming, cloud burst may be there, heavy to heavy rain may be there. Do not come out of your houses. Fishers are advised not to go deep in the sea and all that. यानी कि जो मछली पकड़ने वाले हैं उनको बोल देते हैं भैया आप किनारे पे रहिए, अंदर मत जाइए, तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है. But here it is unpredictable. और earthquake क्या है, that we have understood in the last lesson. Sudden shake or the tremble for some time, थोड़े समय के लिए जो ये धरती हिलती है, धरती कांपती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक. और अर्थक्वेक क्यों आता है, उसके दो रीजन थे. क्या है बच्चों, आवर अर्थ इज, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा था, द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. इनर कोर, उसके भी आगे फिर दो है, इनर एंड द आउटर कोर. कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. कोर के क्या थे, इनर कोर, आउटर कोर, देन मेंटल, एंड लास्ट इज द आउटर कवरेज, दैट इज द व्हाट, क्रस्ट ऑफ द अर्थ. क्रस्ट ऑफ द अर्थ यू कैन से थोड़ी मिट्टी, नो, इट रन्स इनटू माइल्स, किलोमीटर्स, 4-6 kilometers to 40 kilometers. That 2,800 kilometers approximately. जो इनर कोर है 1200 मीटर के आसपास है, आउटर कोर 2300 किलोमीटर के आसपास है, एंड जो मेंटल है 2008 किलोमीटर के आसपास है. वो टोटल जो रेडियस है वो तीन हिस्सों में, जो रेडियस है आपका क्या, इसका अर्थ का, उसको अब तीन हिस्सों में डिवाइड कर दो. सेंटर वाला पोर्शन क्या है, कोर है, उसके भी आगे टू पार्ट्स हैं, इनर कोर एंड द आउटर कोर, देन मेंटल एंड द क्रस्ट. जो इनर कोर है बच्चों, दैट इज अ सॉलिड, मेनली आयरन. यस, ट्रेसेस ऑफ निकल आर आल्सो देयर. व्हाई इट इज इन अ सॉलिड स्टेट, हॉट solid state? Reason being, it is having a tremendous pressure from the all sides. And mental, which is the middle part, it is in the molten state. It is quite hot, and you can say that the core, inner and the outer core, there also. अब क्या है, कोर क्या है, सॉरी बच्चों, वो थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया बच्चों. Inner core is a solid, outer core is a molten state. Mental है वो क्या है, हार्ड रॉक्स का है. ठीक. अब क्या है, जो आउटर कोर है दैट इज इन अ मोल्टन स्टेट, हॉट मोल्टन स्टेट, एंड व्हाट इट इज सेंडिंग, बिकॉज ऑफ दिस mental which is in contact with the
outer core, it is having what? Convectional heat currents. And because of convectional heat current, since the outer core is in a molten state, slowly उसमें जो convectional current की वजह से क्या है, जो उसका mantle है वो slowly move करता रहता है, और जो outer crust है, which is in outer layer of the, and because of these convectional currents, जो outer crust है, which is not a single piece, it is a fragmented piece, जो continents है, plates है different बच्चों. अगर आप वर्ल्ड मैप के देखो तो अमेरिका की साइड से होती हुई अफ्रीका के नीचे से, then it crosses the Indian or Himalayan region, entering from the Gujarat, going toward the western Himalayas, then running toward the eastern states. That means in India also एक fault line है, एक fragmented, ये जो 7 continents है, वो fragmented pieces of crust है. Since they are fragmented, टुकड़े हैं, and because of the convectional current, they are also moving slowly. और जो fragmented pieces है बच्चों, they are not कोई ऐसा कोई आपने किसी आरी का ब्लेड लेके या कोई वो शार्प चीज लेके या बड़ा minutely इसको काटा हुआ है. नो, जब उसके fragmentation हुई बच्चों, वो जगह जगह से haphazardly zigzag टूट गई. अब जब वो मूव कर रही है तो क्या होता है बच्चों, जब वो एक दूसरे के पास से गुजरती हैं, that means when they slide past they get entangled. ओके, या जब कभी वो आमने सामने से हेड ऑन कोलिजन होता है, तो जब हेड ऑन कोलिजन होता है then also a great force jolt is there. That energy is converted into seismic waves, जिसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं. Likewise then when these स्लाइड पास्ट करती हैं, वो अटक जाती हैं, आपस में एंटेंगल्ड हो जाती हैं. अब वन फ्रेगमेंट इज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड वन. नाउ दे आर मूविंग एंड देयर फोर्स, वो इतनी ज्यादा फोर्स एक्यूमुलेट हो जाती है, दैट एंटेंगलमेंट, जो एंटेंगल हुए थे वो एक जोल्ट के साथ, जर्क के साथ दे ड्रिफ्ट अपार्ट, वो अलग होते हैं. Huge amount of energy is released in the form of seismic waves, shock waves or seismic waves, which causes a sudden shake or tremble in the earth. This is how earthquake is caused. Now, how to quantify, how to magnify the earthquake? उसका मैग्नीट्यूड क्या था, कहां आया, उसके साथ बच्चों के अर्थक्वेक के साथ कुछ टर्मिनोलॉजी, टर्म्स कनेक्टेड. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम आल्सो. व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स कनेक्टेड विद द अर्थक्वेक? अर्थक्वेक टर्मिनोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस. इट इज आल्सो नोन एज द हाइपोसेंटर. अब क्या है बच्चों, फोकस इज दैट पॉइंट इनसाइड द अर्थ from where the seismic wave or shock wave have origin. कहने का मतलब क्या है, जहां अगर स्लाइड पास, जहां टकराव हुआ दो फ्रेगमेंटेड पीसेस का, हेड ऑन कोलिजन हुआ, या जहां वो अनटेंगल्ड थी और वो जर्क और जोल्ट के साथ अलग हुए वो दो पीसेस, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, वहां जो ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज होती है, which is converted into seismic waves and all that. That point inside the earth, this is known as the focus. This is known as the focus. Then this is also known as hypocenter, epicenter. Now, shock wave originated from here, but vertically on the free earth. ये जो पॉइंट वर्टिकली बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल पे जो पॉइंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपीसेंटर. पॉइंट ऑन फ्री अर्थ, वर्टिकली द पॉइंट ऑफ फोकस, उसे हम क्या बोलते हैं, एपीसेंटर. क्या बोलते हैं, एपीसेंटर. फोकस में भी डीप इनसाइड द अर्थ, 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, इट में भी 20, इट में भी मोर, डिपेंड कितना बड़ा क्रस्ट है और कहां वो आपस में
यानी कि जो फ्रेगमेंटेड पीस था उसकी डेप्थ कितनी थी वहां पे। इट कैन बी व्हाट, इट कैन बी फ्रॉम 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक डेप्थ हो सकती है। कहीं कितना है, कहीं कितना है। सो विद इन द अर्थ फ्रॉम वेयर द seismic waves has originated, focus vertically top on the free earth, it is epicenter. Then the magnitude क्या है बच्चों? It is the quantity to measure the size of the earthquake in terms of its energy. कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है, ये मेजर करने के लिए किसका? साइज ऑफ द अर्थक्वेक, हाउ मच एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, कितना बड़ी एनर्जी जब वो एंटेंगलमेंट से अलग हुए या जब हेड ऑन कोलिजन हुआ, कितना बड़ा जर्क लगा, कितनी हैवी शॉक वेव्स आई। मैग्नीट्यूड। नाउ रिचर स्केल। अब क्या है रिचर स्केल? वो मेजर करता है मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड मोशन रिकॉर्डेड एट द स्टेशन। अब क्या है बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो रिकॉर्डिंग वाले जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब मैं ये कहता हूं या हमने ये पढ़ा अभी, इट इज अनप्रिडिक्टेबल, व्हेन एंड वेयर नोबडी नोज। तो ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, इन्होंने जो अपने वो इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं, ऐसा तो नहीं ना उनको मालूम है कि भाई हाँ दिल्ली में भूकंप आने वाला है, वहां अपने वो रिकॉर्डिंग स्टेशन बना दो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है बच्चों, रिचर स्केल, मैग्नीट्यूड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड मोशन, जो धरती हिलती है, recorded at the station with respect to epicenter। अब सपोज करो फोकस यहां है, एपीसेंटर यहां है, यहां आपने, और वो अपना क्या है, उनका सिस्टम है बच्चों, वो उसको अपने जो लेटेस्ट वो स्केल्स हैं उसके साथ उसको मैच करके उसको मॉडिफाई करते हैं मर्सेलिस स्केल के ऊपर। That is richter scale. Magnitude, richter scale, then intensity. Now it is the rating of the effect of earthquake at a particular place. अब क्या है बच्चों, इंटेंसिटी क्या हो गई, रेटिंग है at a particular place। अब क्या है बच्चों, यहां जो एनर्जी रिलीज हुई है फोकस पे, that may be more. Recording center is here, from that energy is, that is shock waves are moving toward this recording center। तो क्या है, इट इज द रेटिंग ऑफ द इफेक्ट, यानी इस जो फोकस के ऊपर जो एनर्जी रिलीज हुई, जिसने धरती को शेक किया, उसका इफेक्ट क्या है, दैट इज द इंटेंसिटी, दैट इज द इंटेंसिटी। इट इज द रेटिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक एट ए पर्टिकुलर प्लेस। यानी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, इट में बी द रिकॉर्डिंग स्टेशन जहां वो चीजें वो रिकॉर्ड हो रही हैं, इट में बी समवेयर एल्स। इंटेंसिटी कितनी रहेगी। अब क्या होगा बच्चों, अगर अर्थक्वेक हम यहां फतेहाबाद, हिसार डिस्ट्रिक्ट, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के किसी एरिया में हम बैठे हैं, इफ अर्थक्वेक कम्स which focuses in the Uttarkashi area, intensity will be quite high near to the Uttarkashi areas, but intensity of that particular quake will be very very less। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, अक्टूबर 20 अक्टूबर 1991 में रात को 2:53 यानी 2:53 अप्रोक्सीमेटली, यू कैन से 3 o'clock in the morning, रात का समय, सो रहे हैं उत्तरकाशी में, जिसे गढ़वाल अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। वो जो भूकंप आया था बच्चों, उसका जो रिचर स्केल पे मैग्नीट्यूड या उसकी जो लेवल
मापा गया था दैट वाज 6.8. It lasted for 45 seconds only. 768 people died. But the shocks or the tremors or the shaking of the earth was not felt by we people while in Fatehpur. उस वक्त तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में था, अब डिस्ट्रिक्ट खुद अपना एक डिस्ट्रिक्ट है फतेहपुर. कहने का मतलब क्या है, 6.8 मेजर अर्थक्वेक था as far as magnitude the intensity is concerned, but the intensity of that particular earthquake of 1991 in the Gadwal region, while when the shock waves reached our area, their intensity was so low we could not even feel it. So intensity is at a particular place with respect to the shock waves, with respect to the shock wave it produces. ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड रिक्टर स्केल वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है. ठीक है, बट इंटेंसिटी अवे यू गो फ्रॉम द focus and the epicenter, intensity goes down. Intensity goes down. So all these terms are connected with the earthquake. So we have tried to understand focus जहां से वो earthquake start होता है inside the earth, epicenter vertically on the free earth or above that focus and all that. Then magnitude उसका जो क्या कहते हैं, वो जो magnitude quantity of the energy, size of the earthquake in terms of the energy which was released or which has generated the shock waves. Intensity, rating of the effect of the earthquake at a particular place. ठीक है. Now how all these things, how the magnitude and this you can say if magnitude on the effect of the ground motion, जो scale के ऊपर how it is recorded and all that. It is recorded with the help of a seismograph. Seismograph, what is that? It is an instrument. Seismograph is an instrument which measures and records the magnitude of an earthquake in terms of the shock wave it produces. कितनी बड़ी एनर्जी का शॉक वेव है, कितनी बड़ी बड़ी लहरें वेव उठ रही हैं. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट. क्या क्या होता है इस इंस्ट्रूमेंट में बच्चों? बिग हैवी बॉल इज देयर. इट इज हैविंग ए ड्यू टू इट्स वेट्स, इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ इनर्शिया. It cannot easily move, it cannot easily shake. Even if the heavy to heavy earthquake is there, it will remain stationary. यानी धरती, इसको इतना वेट है, धरती ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको अपनी तरफ खींचा हुआ है, इसमें इतना इनर्शिया स्टोर हो गया है, it will remain stationary. Okay, this is hanged from a very heavy wire from a sport. ये जो sport है उससे इसको हैंग किया जाता है इस वायर के द्वारा. एंड एट द एंड ऑफ द दिस बॉल देयर इज a pen and underneath at the base there is some rotating drum. जो ड्रम है वो सपोज करो जैसे आपका ये ड्रम है, ये रोटेट हो सकता है, इट इज रोटेटिंग, एंड ऑन दिस ड्रम, रोटेटिंग ड्रम घूमता है जो, उसके ऊपर एक ग्राफ पेपर. आपने बच्चों कभी अपने दादाजी की, नाना की, या कभी भी आपके फैमिली में कोई बीमार होता है, हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फटाक से डॉक्टर पैसे के लिए चक्कर में कुछ ऐसा वैसा ईसीजी वो सब लिख देता है, टेस्ट वेस्ट. ईसीजी मालूम है क्या होता है बच्चों? एक ग्राफ पेपर के ऊपर वेवी जिगजैग लाइंस ड्रा हो जाती है. ईसीजी में तो क्या है बच्चों, वो जो उसका वो पेन है, इट मूव्स लाइक दिस एंड दिस, बट हियर
since the pen is attached to the heavy weight ball which doesn't move, this drum is rotating having the graph. ये ग्राफ जो है इसके ऊपर वो घूम रहा है. जब बच्चों अर्थक्वेक आता है तो क्या है? This heavy ball doesn't shake. ये जो स्पोर्ट है, ये जो बेस है, it starts shaking like this. बेस शेक करता है, उसके ऊपर वो रोटेटिंग ड्रम है, इसके ऊपर वो घूम भी रहा है और शेक भी कर रहा है. जब वो घूम भी रहा है, कहने का मतलब क्या है? ये ऐसे ऐसे घूम भी रहा है और शेक भी कर रहा है. तो क्या होगा बच्चों? इस पेन स्टेशनरी है बिकॉज ऑफ दैट हैवी बॉल, हैवी वेट. वो पेन तो खड़ा रहेगा अपनी जगह पे, ये ऐसे ऐसे होगा तो उस पे इससे जिगजैग जैसे ईसीजी बनती है, एक तरह से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी बन गया इसके ऊपर. किसका? अर्थक्वेक का. वो जो लाइनें कितनी कितनी दूर गई हैं, वो जो आईएमडी डिपार्टमेंट के जो वहां के इंस्ट्रक्टर्स हैं, दे एनालाइज दोज बिग बिग लाइंस एंड टेल यू. उसके ऊपर स्केल है, रिचर स्केल, मैग्नीट्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड मोशन रिकॉर्डेड एट द स्टेशन. वो एक पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग स्टेशन है आईएमडी डिपार्टमेंट का, वहां रिकॉर्ड होता है. वो जो ग्राफ बनता है, फ्रॉम देयर दे टेल रिचर स्केल पे उसका मैग्नीट्यूड कितना था, मैग्नीट्यूड कितना था. सो दिस इज हाउ इट इज रिकॉर्डेड. और बच्चों मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो रिचर स्केल है बच्चों, इट इज नॉट ए लीनियर क्वांटिटी. ऐसा नहीं है 1 2 3 4. यस, ऑन दिस रिचर स्केल इट इज नंबर फ्रॉम 1 to 12, 1 से लेके 12 तक है. बट above 9 or 10 plus, so far not even a single earthquake has been recorded which is having a magnitude of 10 plus on the Richter scale. रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया. आया होगा भले, लेकिन उसने इस सेस्मोग्राफ को भी तहस नहस कर दिया होगा, उस मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्डिंग स्टेशन को भी तबाह कर दिया होगा, कुछ बचा ही नहीं होगा. उसका इतना ज्यादा इफेक्ट होता है. रीजन भी को लीनियर क्वांटिटी नहीं है. कहने का मतलब नहीं है कि जो मैग्नीट्यूड 1 है, इफ मैग्नीट्यूड इज 1 and the magnitude is 2 or 3, the intensity will be 3 times. No. If we compare the earthquake of magnitude 2 with the magnitude 1, it is 10 times more than the magnitude of 1. कहने का मतलब क्या है? उसका जो इफेक्ट है, it is 10 times more. And if we try to compare the earthquake of a magnitude 3 with that of an earthquake of having a magnitude 1, its intensity is 100 times more. 10 multiplied by 10. वैसे मल्टीप्लाई, जैसे लाउडनेस में हमने देखा था, पढ़ा था ना अभी साउंड वाले चैप्टर में. Loudness depends upon the square of the amplitude. If you double the square, loudness will increase 4 times. 2 का square. And if you reduce it to half, loudness will be decreased 4 times. Likewise, this magnitude and its intensity affect the quantum of energy it is releasing. Okay? So, मैंने शायद कल भी आपसे हल्का फुल्का बात की थी. लेस देन 2 मैग्नीट्यूड, इट इज ट्रीटेड एज ए माइक्रो वन. इट इज नॉट फेल्ट. 2 to 3 नॉट फेल्ट, बट इट इज रिकॉर्डेड. रिकॉर्डिंग स्टेशन पे रिकॉर्ड होता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता. और ये लेस देन 2 मैग्नीट्यूड वाले हैं बच्चों, 8000 अर्थक्वेक्स पर डे आते हैं. कितने आते हैं? 8000 पर डे. आप हिसाब किताब लगाइए. हम बातचीत कर रहे हैं, मैं लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप सुन रहे होंगे जब इसको आज या कल, तब हो सकता है आपके नीचे धरती हिल रही हो, जो हमें महसूस नहीं होती. इट कैनॉट बी फेल्ट.
2 to 3 not felt, यानी कि up to the magnitude of 3 it cannot be felt but it is recorded, and 3 to 3.5 it can be felt. लेकिन माइनर कैटेगरी में आते हैं दोनों, इन 2 से लेके 3.9 तक माइनर हैं. 2 to 3 फेल्ट नहीं होते, रिकॉर्ड होते हैं. 3.9 तक फील भी होते हैं, रिकॉर्ड भी होते हैं, लेकिन इनके साथ कोई ज्यादा नुकसान हमें नहीं होता. अब कैटेगरी क्या है बच्चों? 4 to 4.9, इसे हम लाइट कहते हैं. लाइट इंटेंसिटी थी उसकी, लाइट. ओके, इफ इट इज लाइट इट मे कॉज डैमेज इफ इट लास्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, यानी ज्यादा रहता है तो ये नुकसान कर सकता है. अब ये बच्चों क्या है? दे आर कमिंग इन ये 2 से लेके 3.9 मैग्नीट्यूड के या 4, ये वाले 1000 में आते हैं एक साल के अंदर, 1000 में. 5 to 5.9 ये 100 में आते हैं. ये 800 पर ईयर आते हैं, जिनको हम मॉडरेट बोलते हैं. दे कैन कॉज डैमेज टू द कच्चा हाउसेस, यानी कि जो मड के, मिट्टी के बने हुए मकान हैं, खपड़ैल के बने हुए मकान हैं, झोपड़ियां बनी होती हैं जो, वो वहां टूट फूट तोड़ फोड़ हो सकती है. यस, इफ इट क्रॉसेस दिस moderate level it comes under the category of strong. 6 to 6.9 ये बच्चों all over the world 120 per year, 120 per year. Japan, Asian country, Indonesia, Japan, most vulnerable to earthquakes. आपको मालूम है बच्चों, वहां जापान के अंदर हमारी तरह कंक्रीट के हाउसेस नहीं बनाते, वो लकड़ी के मकान बनाते हैं. अर्थक्वेक आए भी, आपके ऊपर गिरे भी छत, तो ज्यादा हैवी, लाइट वेट लकड़ी, स्पेशल वुड के बनते हैं वहां पे. ओके, लंदन में भी ऐसा लकड़ी के मकान बनाते हैं, उनका अपना सिस्टम है, उसमें बनाते हैं. नाउ 6 to 6.9 वेरी स्ट्रॉन्ग, डैमेज, ह्यूज डैमेज. अबव 7 to 7.9 इसे हम मेजर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेजर. ये मेजर अर्थक्वेक भी बच्चों, दे आर कमिंग टू द ट्यून ऑफ 18 earthquakes per year. 18 earthquakes per year. And above that, 8 and above, 8 and above, 8 and 8.9, great, बहुत बड़ा, once in a year. और उसके ऊपर 9 and plus above ग्रेड तो है, वो कभी 20 साल में, once in 20 years, once in 20 years, 1/20 means once in 20 years. जो कौन सा है बच्चों? कौन सा है? अपना ये 9.9 to 9.9. ये तो एक आधा आता है 8 to 8.9, जो वो भी ग्रेड कैटेगरी में आता है. 8 to 8.9 एक बार कम से कम, इट मे और मे नॉट बी, बट यस, एवरेज वंस इन ए ईयर. 9 to 9.1 मैग्नीट्यूड, वंस इन 20 years, एवरेज है बच्चों. ये नहीं कि 20 साल में एक बार आएगा, हो सकता है 25 साल के बाद आ जाए, उसके बाद 15 साल के बीच में कभी भी आ जाए. एवरेज 20 years. Then 10 plus तो बच्चों क्या है, मैंने आपको बताया, अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया. कैटेगरी ग्रेट है बिकॉज ऑन रिक्टर स्केल द डिजिट्स आर अप टू 1 to 12, 1 से लेके 12 तक है उसके रिक्टर स्केल के ऊपर. जो स्केलिंग है डिजिटल है, उसके अंदर डिजिट्स हैं, 12 तक है, लेकिन 9 plus 10 plus रिकॉर्ड ही नहीं होते. रीजन बीइंग देयर इंटेंसिटी इज सो हाई, देयर इफेक्ट इज सो ग्रेट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द ग्रेट अर्थक्वेक्स. Destruction is so that even the where it is being recorded, that recording station is also demolished.
So this is how they are related this. कौन सा earthquake, कितना बड़े मैग्नीट्यूड का है, उसका इफेक्ट क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो है, माइनर है, लाइट है, मॉडरेट है, स्ट्रॉन्ग है, मेजर है, ग्रेट है, कितने कितने आते हैं, यानी जो हमें महसूस ही नहीं होते 8000 पर डे आते हैं, और जो डिस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों 6 above 6 120 ये तो आते ही हैं, अक्सर आते हैं 120 you can say that approximately quarter to 4 days, 3 days plus one earthquake. इंडिया में नहीं तो कहीं भी, इंडिया में नहीं तो कहीं भी। और जैसे बच्चों मैंने कल भी आपको बताया था, वी आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडो गैंगेटिक रीजन। हमारा जो 4 जोन में बटा हुआ है बच्चों हमारा इंडिया भी, जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2। वी आर इन जोन 3। जोन 4 तो वो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय है एंड कश्मीर एरिया है, ठीक है, उत्तरकाशी वाला एरिया, वो जो ग्रेट हिमालयंस वेस्टर्न हिमालयंस में आ जाता है। ओके, द रन ऑफ कच्छ, ये सारा क्या है 5 जोन में आता है। 4th जोन में गैंगेटिक रीजन आता है बच्चों। ए पार्ट ऑफ योर यू कैन से राजस्थान इज ऑल्सो कमिंग, थोड़ा गुजरात कह लीजिए, मेनली आपका एनसीआर, यस, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, आवर दिल्ली एंड सराउंडिंग एरिया, दे आर कमिंग इन जोन 4। दिल्ली हमसे 215 किलोमीटर दूरी पे है, यानी वहां अगर आता है भूकंप उसका इफेक्ट हमारे पे कम होगा, बट यस दिल्ली इज इन द सेकंड टाइप ऑफ डेंजर के हिसाब से इंडिया में सेकंड नंबर पे है, एंड वी द पंजाब एंड हरियाणा इंडो गैंगेटिक रीजन वी आर कमिंग इन द कैटेगरी जोन 3, रेस्ट ऑफ द पार्ट जोन 2, दैट्स ऑल, जोन 1 नहीं है कोई भी। यानी कि हम जो है खतरे के हिसाब से ऊपर से बहुत ज्यादा खतरा, उससे कम खतरा, बिल्कुल कम खतरा, यानी उससे कम खतरे में 3rd जोन में आते हैं, जोन 3 में आते हैं पंजाब, हरियाणा एंड इंडो गैंगेटिक रीजन एंड ऑल दैट। बाकी जितने बच गए आपका सेंट्रल इंडिया है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये सब किस में आते हैं जोन 2 में। इनको बहुत कम खतरा है, ठीक है। सो लास्ट जो बच्चों इस टॉपिक का रह गया दैट इज, अगर बच्चों ये इतना डिस्ट्रक्टिव है, इतना खतरनाक है, तो इससे बचने के भी कोई उपाय होंगे। थोड़ा आवाज हुआ, लेट मी सी भाई, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, उस दिन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी 6th क्लास के लेसन में, आपके लेसन में भी दोबारा करना पड़ा था। ओके, सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अब क्या है बच्चों, प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है? जैसे मैंने आपको अभी बताया, जापान के अंदर बच्चों क्या लकड़ी के मकान, लकड़ी यूज करते हैं, हैवी कंक्रीट मत यूज कीजिए। इफ यू कैन मेक योर हाउसेज विद मड ब्रिक्स एंड मड, और जो आपका जो रूफिंग है उस पर आप हैवी कंक्रीट मत यूज कीजिए, हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल मत यूज कीजिए। रीजन बीइंग इफ अर्थक्वेक कम यू मे बिकम ए विक्टिम ऑफ दैट हैवी कंक्रीट। ओके, और आप घर में हैं तो आपको क्या करना है, आप बाहर हैं तो आपने क्या करना है, आपकी बुक में थोड़े मेथड लिखे होंगे बच्चों। घर में है सपोज, अब आप क्या है, सपोज डे टाइम में आता है, आपको मालूम पड़ जाता है, आप घर में हैं, आपको मालूम पड़ता है कि अर्थक्वेक इज देयर, क्योंकि क्या होगा, सडन शेक ऑफ द अर्थ, आपकी बिल्डिंग, आपका घर जा जिसमें है, आपको हिलना शुरू कर देगी। इफ पॉसिबल रन आउट इन द ओपन, दौड़कर बाहर आ जाइए। दौड़कर बाहर आना पॉसिबल नहीं है तो किसी कोने में, यानी जहां 2 दीवारें मिलती हैं उसके ऊपर छत है, कोने में, क्योंकि होता क्या है बच्चों, जब भी कभी छत गिरती है तो सेंटर से ऐसे कोलैप्स करती है, कोने बच जाते हैं।
कोने बच जाते हैं। और अगर आप को कोई ऐसा आपके घर में है, जैसे को क्या बोलते हैं ना, वो शेल्फ बनाते हैं, शेल्फ, वो कुछ गैस सिलेंडर रखने के लिए ऊपर, वो किचन के अंदर जैसे शेल्फ होती है, एक टेबल टॉप टाइप होता है, ठीक है, वो शेल्फ बनी हुई कंक्रीट की, उसके नीचे छिप जाइए, क्योंकि अगर छत से ऊपर कुछ गिरेगा वो पहले शेल्फ पे गिरेगा, whole of the pressure of the energy will be borne by that shelf, आप पे वो नहीं गिरेगी। और अगर आप जब कोने में भी खड़े होते हैं, अपने दोनों हाथों को सिर पे ऐसे रखिए, परचस कोई ब्रिक और कोई कंक्रीट गिरता भी आपके ऊपर तो इट इज गोइंग टू स्ट्राइक योर हैंड्स, नॉट आपके वो खोपड़ी की हड्डियों को तोड़ेगा सीधा। बेड पे आप सो रहे हैं, रात को आता है भूकंप, आ गया, उठने का टाइम नहीं है, करवट लेके जिस तरफ दीवार है उस तरफ, कोना है दीवार है उस तरफ हो जाइए, बेड के ऊपर रोल कर लीजिए, उठने में वक्त ही नहीं लगता, उठने का तो टाइम ही नहीं देता, सो सडन होता है और कुछ सेकेंड्स के लिए रहता है। तो ये बातें अगर आप घर में हो, ठीक है ना, घर में सबसे बड़ी बात क्या बच्चों, हैवी अलमीरा रखी है मत, इनबिल्ट, अब जो कंक्रीट की बनती थी अब तो रिवाज खत्म हो गया है, एक्स्ट्रा वो वार्डरोब वगैरह बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ट्राई टू सेव योरसेल्फ। और अगर आप बाहर है बच्चों, गाड़ी में है, गाड़ी में तो गाड़ी में बैठे रहिए, धीरे धीरे गाड़ी चलाइए। क्यों, कोई चीज आप पे गिरेगी तो वो किस पे गिरेगी, पहले कार पे, कार की बॉडी आपको कुछ तो प्रोटेक्ट करेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप कार में हैं, अर्थक्वेक की देखो कि आपकी अर्थ के साथ आपकी कार भी ऐसे ऐसे मूव करेगी, हिलेगी। क्या करिए, धीरे धीरे गाड़ी को चला के ओपन एरिया में ले जाइए। अगर आप पैदल जा रहे हैं, कभी भी ये कोशिश मत कीजिए कि किसी हम शेल्टर के नीचे आ जाएं, पेड़ के नीचे आ जाएं। नो, मैंने बताया ना, घर के अंदर है तो ओपन में भागिए जहां आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है। इसी तरह अगर आप ओपन में है तो शेल्टर लेने की कोशिश मत कीजिए कि ओपन में बैठ जाइए, कुकड़ू जैसे उसमें था लाइटनिंग में, सिर पे हाथ ऐसे नीचे करके अपने हेड डाउन वाली पोजीशन में आ जाइए। ये थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस हैं, कुछ बच्चों प्रिकॉशन, एक आधी कोई प्रिकॉशन आपके बुक में और भी लिखी होगी, उससे आप पढ़ लेना। उसमें कोई ऐसा समझाने वाली बात नहीं। कहने का मतलब क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, अर्थक्वेक जहां डैमेज कर सकता है वहां से दूर हट जाइए। बस ये बात है कि जो सेस्मिक जोन्स हैं, जो फॉल्ट जोन्स हैं, उनके अंदर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करना है बिल्डिंग बनाने के लिए, वो ऐसा होना चाहिए विच शुड बी लाइट वेट। हैवी वेट कंक्रीट, सीमेंट और ऑल दैट हैवी मत यूज कीजिए। जो रूफिंग करनी है आपने बच्चों, अगर आपका पर्पस सिंगल स्टोरी बिल्डिंग से, आजकल बच्चों का तो लेंटर डालते हैं 4 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच। अरे भाई, अगर आपका पर्पस 3 इंच लेंटर से चलता है तो वाई टू गो फॉर 6 इंच? वो क्या हैवी हो जाएगा, गिरेगा तो ज्यादा नुकसान करेगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टॉपिक, सम नेचुरल फिनोमेना। ओके बच्चों, yes, from Monday onward we will be starting our new chapter, chapter number 16, that is light. And it may be possible that on Monday I may not be able to send you the lecture. हो सकता है मंडे में आपको लेसन लेक्चर ना भेज पाऊं, because tomorrow morning on Sunday morning I am having some personal work and I am visiting Ludhiana. It may not be good. Monday I will be busy there. In case it will be possible for me to come back on Monday evening, then I will be sending you the lesson on Tuesday. So from Tuesday onward up to Saturday, 5 lectures, or maybe extended 1 day more, and all that 6 lessons we will be completing our light topic. Thank you. Enjoy your study.